Okay, fine. Okay, fine. Good morning, class. Good morning, everyone. ये Good morning, sir. लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो डिस्कस किया था, इट वाज ऑफ हैवेल्स. तो अभी जो केस स्टडी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना, जो पैटर्न है विच ट्राइंग टू फॉलो, कि जो फाउंडर हैं उनके बारे में भी कुछ डिस्कस हो, ताकि उससे कुछ इंस्पिरेशनल स्टोरी भी निकल आए. ठीक है, कुछ इंस्पिरेशन मिले कि हाउ ही मेड इट. क्योंकि सफर आसान तो होता नहीं है, और उसके बाद फिर वो जो कंपनी उन्होंने बनाई और उसको फिर ही टुक टू द नेक्स्ट लेवल. ठीक है. ओके. So where this story is all about, this case study is all about, KFC, Kentucky Fried Chicken. Okay, please, where you start? Yeah. Good morning to everyone. Hmm. So we'll study about the KFC success story here, and the founder name is Colonel Sanders. Hmm. And if you are a non-vegetarian, odds are high that you are a huge fan of KFC already. We are pretty sure that you visit your nearest KFC restaurant at least once or twice a month. Okay, fine. तो अगर आप नॉन वेज खाते हैं तो ऑफ कोर्स केएफसी आपकी लिस्ट में होगा ही होगा. KFC is a very good option. जस्ट और Especially. केएफसी आप रेगुलर विजिट करते होंगे क्योंकि उसका फ्रेंचाइजी भी अब हर जगह इंडिया में. डोंट यू? ओ कम ऑन, डोंट लाई. It is simple with just a discussion, that it's the simple chicken. It is a simple chicken. और चिकन बहुत दिन से आदमी लोग खा रहे हैं. ठीक है. But some value addition, some value addition, and the success comes, isn't it? Yes, sir. Yes. Fine. Please proceed. Although KFC offer a wide variety of non-veg products in India, it is best known for its fried chicken and Zinger burger. Hmm. In case study and success story, we'll go back into history and see how and where KFC started, the method that lead to the success and the hurdle faced by company in its journey thus far. So let's begin with finger licking good story right now. Okay. So some background about the KFC founder, Yes. please. KFC was founded by an entrepreneur named Harlan Sanders. Some Hmm. biographies suggest that Sanders was born in the year 1890 and spent his childhood in farm in Indiana. तो जो केएफसी था वो हार्लन स्टैंडर्ड ने शुरू किया था. और सजेस्ट करते हैं बहुत लोग कि वो 1890 में इंडियाना के फार्म में बॉर्न हुए थे. Reports suggest that his father died when Sander was only 6 years old, leaving later with the responsibility of taking care of a younger brother and sister. Hmm. Sander was spent days working for long hours. However, her profession is still debated. According to a report in the New Yorker, Sander was a decent enough chef by the age of 10. अब क्योंकि Okay. इंफॉर्मेशन पे डिबेट रहती हैं बट फिर भी रिपोर्ट सजेस्ट करती हैं कि सैंडर 6 साल वे से. सबसे इम्पोर्टेंट है कि ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं है. ठीक है. ऑफन वेरी बिग एंटरप्रेन्योर और वेरी 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 रिच, बॉर्न टू अ वेरी रिच फादर. ठीक है. सबसे पहले ये बात, ही वाज बॉर्न in 1890 and spent his childhood in a farm in Indiana. ठीक है. Please proceed. The only thing that he was good at was that he was a decent chef by the age of 10. Hmm. His mother remarried when he was 12 years old. However, Hmm. the kid's stepfather wasn't enough to them. As a result, Sander was sent for work on farm 80 miles away while his younger brother was sent to live with aunt. Okay, fine. एकदम सिंपल है. मदर गॉट मैरिड. ठीक है. और उसके बाद जो स्टेप फादर थे वो उतना काइंड इनफ नहीं थे. तो सिचुएशन आप समझ रहे हैं ना. इट जस्ट नॉट अ स्टोरी. मतलब जस्ट इमेजिन द सिचुएशन ऑफ कर्नल सैंडर्स एंड हिज चाइल्डहुड डेज. ओके. प्लीज Dropping प्रोसीड. out of school. Sander soon realized that he was not the right fit for the school, so he dropped out while in seventh grade and few years later started taking up jobs such as operating a ferry boat, selling insurance, marketing tires, stocking steam engine of trains, and making lighting systems.
ठीक। क्योंकि जब उन्हें स्कूल ज्वाइन किया तो रियलाइज किया कि पढ़ाई कहीं ना कहीं उनके लिए नहीं है, इसीलिए वो ड्रॉप आउट कर गए और 7th ग्रेड से ही मतलब पढ़ाई पढ़ाई करने के लिए लाइफ में स्टेबिलिटी और कंसंट्रेशन ऐसे कुछ है, लेकिन लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं हो पाई, कंसंट्रेशन नहीं हो पाया, एंड सो ही टुक अ ऑफ कोर्स इट वाज अ वेरी प्रूडेंट डिसीजन नॉट टू स्टडी। yes, and started doing small businesses like selling insurance, marketing tire, etc. अच्छा, Setting up इसमें एक चीज और नोटिस करना है इस केस में, ठीक है, इसको स्टोरी को केस की तरह लेना है। नाउ जस्ट सी द एंजाइटी लेवल, ठीक है, मतलब एक काम किया, फिर दूसरा काम किया, फिर तीसरा काम कर रहे हैं, इसका मतलब है, ठीक है, कि ना, मतलब आई एम नॉट ड्राइविंग सेटिस्फैक्शन फ्रॉम द वर्क, यही हो रहा है ना। Selling insurance, then again marketing tires, entirely different, then stoking of the steam engines of trains, making lightning systems, ठीक है, मतलब एकदम वैसा बहुत ही डाइवर्स जा रहा है। दैट शोज द एंजाइटी फ्रॉम विद इन, ठीक है। Yes. Setting up a restaurant. With the money made from all above mentioned jobs, Harlan Sander bought a small place at a service station in Corbin, Kentucky in Kentucky, 1930. Here, कॉर्बन, here केंटकी he जगह का नाम है, yes, ठीक। here he started to serve he started to serve classic southern dishes to travelers. The place soon became popular for his cuisine, and Sander started to make a decent sum of money through quality food preparation. Soon he acquired two complete service station and expanded his restaurant. ओके, एक चीज और है अभी तक में, कि एटलीस्ट ही इज डूइंग समथिंग, ही इज नॉट सिटिंग आइडल, ये है ना, ही Yes, इज नॉट सिटिंग आइडल, ही इज डूइंग समथिंग। तो ये कुछ ना कुछ एक्चुअली ना, मतलब जस्ट बी पार्टिसिपेटिव, one day or the other something will click, of course. It's just like, God is watching, the trust you all me that God is watching, okay, and the reward will come soon. The only condition is that don't sit at home, no frustration, no panic, no nothing, that life में कुछ नहीं मिला, ये हुआ, उस वैसा नहीं होता है। ठीक है, just keep on participating, that's it. Okay सर, आकांक्षा वेटिंग में। Aksha waiting. please proceed, Sir, टाइम पे आने के लिए बोला कीजिए। in the year 1939, he carried out a small experiment with a new kind of pressure cooker, not what we use at our home these days. He fried his chicken with as many as 11 herbs and spices, and found that this new pressure cooker was capable of delivering the ideal taste that he was looking for. तो क्योंकि वो नई नई डिफरेंट चीजें ट्राई करते रहते थे, उन्होंने फिर से नई डिश में ट्राई की, या उन्होंने 11 हर्ब्स और स्पाइसेस का यूज करके कुछ नए टाइप का इनोवेटिव चिकन बनाने की कोशिश किया। और that is value addition. चिकन तो पहले से भी तला जा रहा है, कुछ मसाला भी लगाया जाता है, ठीक है, इन्होंने कुछ थोड़ा और वैल्यू एडिशन करते हैं। That is कि winners don't do shift thera, statement of shift thera, winners don't do different things, winners don't do different things, they do things differently. बस उनका जो काम करने का अंदाज है वो थोड़ा जुदा होता है, अलग होता है, that's it, the same thing but in a different. और यही आपका एंटरप्रेन्योर का डेफिनेशन में है, एंटरप्रेन्योर, दैट इज डेफिनेशन ऑफ 1985, फाइन, इनोवेशन होना चाहिए, ठीक, प्रोसीड। thanks to this new mode of cooking, his restaurant enjoyed an overwhelming success for the next decade or so. The governor of Kentucky was so impressed with Sanders' effort and hard work that he decided to confer the title of colonel, the highest title a state could offer upon later in 1950. क्योंकि वो इतने फिर सक्सेसफुल हो गए इस चीज से, उनका पूरा केंटकी जो स्टेट था उसमें बहुत नाम हो गया, और वहाँ के गवर्नर ने उन्हें कर्नल का टाइटल भी दिया, ये हाईएस्ट होता है एक स्टेट में। 2 years later in 1952, Sanders signed a deal with his friend Pete Herman, who was willing to sell
who was willing to sell Sanders' dish as Kentucky Fried Chicken through his own restaurant. Sanders received a 4-cent royalty on every successful sale. Success of this deal promoted him to sign similar contracts with several other restaurants. जब वो इतना सक्सेस होने लगते हैं तो अपने फ्रेंड पेटे हरमन को वो ये एक डील ऑफर करते हैं जहाँ पे वो उसे केंटकी फ्राइड चिकन के नाम से रेस्टोरेंट में सेल करवाते हैं और एक 4 सेंट रॉयल्टी हर सक्सेसफुल सेल पे लेते हैं और इसी डील की वजह से बाकी रेस्टोरेंट भी यही कॉन्ट्रैक्ट उनसे साइन करते हैं. Okay. Stumbling block. By this time, Sanda has two means of making money. First, through his own restaurant, and second, through royalty from local restaurants with whom he had shared his recipe. Great. 1952. मतलब ये एक स्ट्रेटजी है, ठीक है. हाउ टू मेक पॉकेट्स. सेम एक्टिविटी लेकिन उससे दो तरफ से पैसा कैसे आ सकता है. वेरी सिंपल. अपना काम अपनी जगह पे कर रहे हैं, एट द सेम टाइम टाई अप भी कर लिया कि एक आइटम हमारा रहेगा एंड आई विल चार्ज सम रॉयल्टी. ऑफ कोर्स यू विल टेक योर चार्ज बट सम अमाउंट. From two pockets money is coming. Two pockets. Yes or no? Yes, sir. And again repeating the the instruction. Actually I will say instruction, this will be the right word. That Warren Buffett, what he said, that you are supposed to have 3 sources of income. जब तक आपके 3 सोर्स ऑफ इनकम नहीं होगा, जो अभी वक्त की जो महंगाई है उसको फिर आप सही से एड्रेस नहीं कर पाएंगे. यू नीड टू हैव 3 सोर्सेस. मतलब ये हमने अक्सर आप लोगों को कहा है. इट अप्लाइज ऑन एवरीवन, ऑन मी एज वेल. ओके, प्लीज प्रोसीड. In 1952, however, the construction of a new highway rendered his restaurant with almost no customer, as he sold this location, though at a loss, and started to reconsider his future plan with a $105 monthly social security and small royalty from local restaurant. Okay. तो 1952 में जब वहाँ पे एक हाईवे का कंस्ट्रक्शन होता है तो उनका रेस्टोरेंट एक लॉस रहता है बिकॉज कोई भी कस्टमर कंस्ट्रक्शन में वैसे आना जाना ब्लॉक हो गया, कनेक्टिविटी टूट गई, लोग कैसे आएंगे. ओके. तो फिर वो उस रेस्टोरेंट को भी सेल कर देते हैं और जो फ्यूचर प्लान जो होता है $105 मंथली डॉलर होते हैं सोशल सिक्योरिटी का, वो यूज करता है. स्मॉल रॉयल्टी यूज करते हैं अपने इनकम के लिए. After careful consideration, Colonel Allen decided to follow a complete franchisee model rather than setting up new outlet of his own. तो वो for ज़्यादा अपना बिजनेस में वापस आने के लिए और नेटवर्क बढ़ाने के लिए वो फ्रेंचाइजी का यूज करते हैं और अब वो खुद आउटलेट्स नहीं बनाएंगे बल्कि फ्रेंचाइजी का यूज करेंगे. फ्रेंचाइजी मॉडल इट इज अ वेरी सक्सेसफुल मॉडल, ठीक है. और ये इट हैज स्प्रेड एक्चुअली बट लॉन्ग टाइम बिफोर इट स्टार्टेड. तो ये बहुत सक्सेसफुल मॉडल रहा है ये फ्रेंचाइजी मॉडल. आप जो भी काम करें उसका फ्रेंचाइजी आप स्प्रेड करें, अल्टीमेटली आपका मार्केट शेयर कवर होगा. ओके, proceed. So he packed his stuff including a few pressure cooker, flour, spices and herbs and hit the road with his wife accompanying him. और फिर अपना जितना सामान होता है और अपनी जितनी उनकी रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स होते हैं सबको लेके अपनी वाइफ के साथ निकलते हैं फ्रेंचाइजी सेटअप करने. On the journey, he would stop and offer to cook free fried chicken for restaurant owner manager. If they like the taste, they would make a deal straight away. तो वो वहाँ पे लाइव डेमो देके ही कन्विंस करते थे और अगर डील अच्छी लोगों को टेस्ट अच्छा लगता तो डील भी हो जाता. Proceeding with this strategy, Sanders managed to get nearly 600 restaurants to serve Kentucky Fried Chicken from both the United States and Canada over the course of few years. और फिर इसी के चलते एक स्ट्रैटेजी के चलते 600 रेस्टोरेंट ये डील साइन करते हैं बोथ यूएस कनाडा में. कनाडा में भी यूएस एंड कनाडा दे शेयर द बाउंड्रीज, मतलब वो नेबरिंग कंट्रीज, ठीक है. लिंग ऑफ फ्रेंचाइजी राइट.
In October 1963, a young lawyer named John Y. Brown had a venture capitalist, Jack Mesty, approached Colonel Sander with an offer for full-fledged franchise rights. Sander was a little hesitant at first, however, after a week of persuasion, he agreed to sell the franchise right for a sum of $2 million, roughly equivalent to $60 million in today's currency. एक तो जब मिनट, अब यहाँ पर आप काम करते रहिए, आप बैठिए मत। तो हम इसको इस तरह से लें कि मतलब द हेल्प केम राइट फ्रॉम $105, $105 से $2 मिलियन आ गया। $105 से $2 मिलियन। तो एक्चुअली ना, इट्स ऑल अबाउट कि डेली यू आर कंट्रीब्यूटिंग समथिंग टू योर जॉब। अपनी जॉब को जस्टिफाई कीजिए, ठीक है। अब वहां पे रोड हाईवे निकल गया, सब कुछ हो गया, तो अब दुकान तो उजड़ गई। सिंपल यही वर्ड सही रहेगा, उजड़ जाना। तो फ्रस्ट्रेशन में आदमी घर बैठे, नो। तो उसमें है कोई भी चीज, अगर काम आपका नहीं बन रहा है, इसमें एक इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, उसके वो अगर नहीं हो रहा है, उसके नहीं होने में बेहतरी। ये बात समझ में आई आप लोगों को? हेलो क्लास, ये हमने क्या बोला? कोई काम अगर नहीं हो रहा है, ठीक है, तो उस वक्त उसके नहीं होने में ही भलाई है, वो काम उस वक्त। लेकिन ये काम ना पढ़ाई के साथ अप्लाई नहीं होता है, बट यू मस्ट कीप योर एफर्ट्स ऑन, सिंपल। ठीक, प्रोसीड प्लीज। According to a report published by Business Insider, under the franchisee contract, it was agreed that Kentucky Fried Chicken (KFC) will set up restaurants across the globe and will under no circumstances comprise the original recipe. तो जब अगर हम रिपोर्ट्स पढ़े न्यूज़पेपर्स की, तो उन्होंने कहीं ना कहीं फ्रेंचाइजी कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ था कि क्वालिटी पे वो कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, क्योंकि वही उनका सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट था केएफसी में। यूएसपी यही है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। So this model happens to be, I can call it that this one company owned, franchisee operated, COFO। फ्रेंचाइजी, जैसे मान लीजिए वेद आपने फ्रेंचाइजी लिया, प्रवीण ने फ्रेंचाइजी लिया, हिमांशु ने फ्रेंचाइजी लिया, तो ठीक है, उनका बिजनेस हुआ। बट एक्चुअली जो काम होगा वो कंपनी ओन्ड हिसाब से होगा, कंपनी के स्ट्रक्चर के हिसाब से, देयर इज नो डेविएशन। तो जिस तरह हम लोग देखते हैं केएफसी का जो रेस्टोरेंट है, जो आउटलेट है, all are very very organized, ठीक है, and very well disciplined. Please, okay. The colonel was to have a lifetime salary of $75,000, a place on the board, a major share in the Canadian KFC outlet, and the opportunity to serve as the company's brand ambassador. तो उनकी सैलरी भी अच्छी आने लगी थी आउटलेट से, और वो कहीं ना कहीं ब्रांड एम्बेसडर भी बन गए थे कैनेडियन साइड ऑफ केएफसी। अच्छा, एक और स्ट्रेटजी इसमें नोटिस करना पड़ेगा, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ हायरिंग अ ब्रांड एम्बेसडर फ्रॉम आउटसाइड, एक आउटसाइडर को, ठीक है, तो उससे ज्यादा बेहतर स्ट्रेटजी है कि अपने आप को ही हम ब्रांडिंग करें, ताकि उससे कनेक्ट ज्यादा बेहतर हो पाएगा। क्योंकि मेरी जो कहानी है वो बिल्कुल मिलती जुलती है लोगों से, मेरे लाइफ में भी स्ट्रगल है, हम मेहनत कर रहे हैं सारी चीज। तो आई थिंक कि हम ज्यादा बेहतर ब्रांड एम्बेसडर बन सकते हैं एज कम्पेयर टू हायरिंग सेलिब्रिटी एंड ऑल। ये फर्क समझ में आया, ये स्ट्रेटजी? जैसे एमडीएच मसाले का, जैसे एमडीएच मसाला, ठीक है, वो उनका नाम क्या है? हरपाल गुलाटी साहब, है ना? यस सर। ये भी एक इसको एक स्ट्रेटजी की तरह लीजिए कि इन स्पाइट ऑफ hiring somebody from outside, why not me? Let's be the brand ambassador of my own company. ठीक है, तो आप भी जो भी काम कीजिएगा अपना ब्रांड एम्बेसडर खुद बनिए, ठीक है। प्लीज प्रोसीड। The aftermath. Many business experts believe that Sanders should have asked for a better deal, but it seems that Sanders was never after money and just looking for global fame for his quality food preparation. अगर बिजनेस एक्सपर्ट की माने तो कहीं ना कहीं वो मानते कि डील और भी प्रॉफिटेबल हो सकती थी, बट क्योंकि सैंडर्स का ऐसा कोई मनी के तरफ रुझान नहीं था जितना एक
ग्लोबल फेम की तरफ था और एक क्वालिटी फूड प्रिपरेशन की तरफ था। एग्जैक्टली। इसका मतलब क्या हुआ? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका मतलब क्या हुआ प्रवीण? प्रवीण माय फ्रेंड, यस सर। इसका मतलब क्या हुआ? सर शॉर्ट पैसे टर्म के प्रॉफिट को पीछे नहीं है। देखा। नहीं, हम तो कह रहे हैं So- इसमें प्रॉफिट, इसमें प्रॉफिट ही नहीं इन्वॉल्व है। ना पैसा इन्वॉल्व है इस स्ट्रेटजी में, ना पैसा इन्वॉल्व है, ना प्रॉफिट इन्वॉल्व है। वो तो एकदम ही नजर नहीं आ रहा। ये स्ट्रेटजी को क्या कहेंगे? जो भी रिजल्ट है ना बाबू, जो भी रिजल्ट है, अब इस इक्वेशन को समझिए, मतलब मैथमेटिकली समझना होगा। 2 + 2 = 4। क्लियर है? यस सर। ओके फाइन। अब इसको दूसरे तरह रखते हैं। 2 प्लस फिल इन द ब्लैंक इज इक्वल टू 4। क्लियर? यस सर। तो ये फिल इन द ब्लैंक में क्या जाएगा? 2। 2 जाएगा। तो हमको जो फिल इन द ब्लैंक है उसको भरने में ना कॉन्सेंट्रेट करना है। यस सर। पूरा कॉन्सेंट्रेशन, पूरा तन मन धन, पूरा एनर्जी, ठीक है, इस फिल इन द ब्लैंक को फिल करने में लगाना है, तभी तो 4 आएगा ना। हम लोगों में क्या गलती होती है कि हम लोग 4 को ऐसा करेंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है। तो जहां रिजल्ट दिमाग में आता है ना, ठीक, थोड़ा डेविएशन आने लगता है। तो रिजल्ट को दिमाग में नहीं रखे हो। अक्सर हम लोग कहा गया है कि भाई क्या फल भगवान के हाथ में है, रिजल्ट इज इन द हैंड ऑफ गॉड। तो इस बात को हम लोग मानते कितना है? ये सिर्फ आपका वो ऐसा कोई इसकी बात नहीं है कि एक ऐसे ही बात नहीं है। इट्स अ वेरी साइंटिफिक स्टेटमेंट दैट यू आर नॉट सपोज टू थिंक अबाउट द रिजल्ट। जब रिजल्ट इज इन द हैंड ऑफ गॉड तो व्हाई टू वरी देन? यस क्लियर हुई बात? यू काइंडली कंसंट्रेट ऑन योर एफर्ट्स। हम लोग के दिमाग में क्या जाता है कि ऐसा करेंगे ना तो इतना मिलेगा, तो वो जो कैलकुलेशन कर लेते हैं, यू जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर एफर्ट्स, एफर्ट्स एंड एफर्ट्स, दैट्स इट, रिजल्ट विल कम। तो मनी जो है, जो भी सक्सेस है, ठीक है, वो बाई प्रोडक्ट है बाबू, वो मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है, वो बाई प्रोडक्ट, वो आएगा ही, सब्जेक्ट टू आपका एफर्ट अगर शानदार हो। तो दिस इज कॉल्ड स्ट्रेटजी, ओके प्लीज प्रोसीड। This can be validated by his constant grumbling of poor quality gravy that the new KFC was offering. कहीं ना कहीं जैसे फ्रेंचाइजी हुआ तो क्वालिटी पे कहीं ना कहीं उन्होंने स्टार्टिंग में देखा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज होने लगा था। तो वो एक चीज है कि उन्हें क्वालिटी पे बहुत ज्यादा ही फोकस था। He spent the later years of his life appearing in KFC commercial, talk show and interviews. अच्छा, एक मिनट। अब हम लोग का सब्जेक्ट जो है सेल्स प्रमोशन एडवर्टीजमेंट है, ठीक है ना। एडवर्टीजमेंट को लेकर के इनकी क्या स्ट्रेटजी रही? एक तो खुद का जो पब्लिक रिलेशन की बात है ना, ये he spent the later years of his life appearing in KFC commercials, talk shows and interviews. तो बिल्कुल इनका इंटरव्यू आएगा तो लोगों का ट्रस्ट और बढ़ेगा ना कि he is the man behind the machine. Yes, sir. तो इनकी स्टोरी और इनकी बात का वैलिडिटी ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू अदर पर्सन। हम किसी मैनेजर को, अच्छे मैनेजर को, बहुत हाईली क्वालिफाइड मैनेजर ऑफ कोर्स, उनको हम हायर करते हैं, नाउ ही विल स्पीक अबाउट माय कंपनी, उसका उतना फील नहीं ना आएगा बाबू, फील नहीं आ पाएगा जितना अच्छा बोल पाएंगे द ओनर हिमसेल्फ, ठीक है। तो दैट Yes, इज यू नीड टू स्पीक अबाउट योरसेल्फ, यू आर सपोज टू रिप्रेजेंट ऑन योर ओन, ठीक है। द प्रेजेंट रूल्स ऑफ KFC रेस्टोरेंट अक्रॉस ग्लोब, नाउ हियर आर द रूल्स। Colonel Sanders wrote down few rules before handing over the rice. Over the years, some more additions have been made, so all KFC restaurants must follow these rules. These are: only a pressure cooker should be used to cook chicken. No other utensil is allowed. Okay. The second one is, once the chicken has been cooked, it should not be removed from the cooker for at least 15 minutes. सही। All मतलब chicken अगर कुकर में बन गया है तो उसको 15 मिनट तक छोड़ देना है, सो दैट कि वो अच्छे से और कुक हो जाए, है ना। फाइन। all chicken pieces should be 8 centimeter wide and must weigh roughly 300 grams. ये बहुत शानदार, ये बहुत ही जबरदस्त क्या स्ट्रेटजी रही कि यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, ठीक है।
और यही यूनिफॉर्मिटी आपका हमने एक बार नोटिस कीजिएगा आप लोग, अगर जब व्हेन यू लर्न एंड यू ट्राई टू परचेज दैट से प्रिंगल्स का जो चिप्स है उसका यूएसपी चिप्स सभी लोग बना रहे हैं, ठीक है, वर्ल्ड वाइड। और प्रिंगल्स क्या है कि उसके चिप्स का जो ना शेप है और जितना भी है वो सब एक जैसा है, मतलब सेम शेप। दैट बिकम द यूएसपी, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। इट्स ऑफ सेम साइज एंड एवरीथिंग सेम। और उसका जो पैकेट आता है प्रिंगल्स का, वो एक इसमें होता है, जैसे कॉर्क का जो नहीं होता है, कॉर्क, बैडमिंटन कॉर्क, उसका जो होल्डर होता है, ठीक है, उसी तरह का पैकेट है चिप्स का। खैर, मतलब कुछ नहीं किया, हम भी चिप्स ही बना रहे हैं, हम भी चिकन ही बना रहे हैं, बट थोड़ा अलग करते हैं इसको। फाइन, प्रोसीड। और सर अगर सेम साइज का बनाते तो रिसोर्सेज भी अच्छे से यूटिलाइज हो जाता। रिसोर्सेज भी अच्छे से यूटिलाइज होगा, और प्लस मतलब कुछ तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के लिए यू हैव टू बी डिफरेंट फ्रॉम द रेस, फ्रॉम द मास, ठीक है, समथिंग डिफरेंट। ठीक है, प्रोसीड। Fourth one, all chicken shouldn't be younger than 60 days or older than 70 days. ये देखिए क्या शानदार बात रही है, जो भी चिकन आएगा वो 60 डेज और 70 डेज ओल्ड से ज्यादा नहीं रहेगा, ठीक है, उससे कम ही रहना चाहिए। ओनली देन यू नो समथिंग लाइक फ्लेश एंड ऑल comes out very properly, the meat. These are all the formula. Yes. Last one, the chickens must remain marinated overnight before undergoing any sort of process. ये बहुत पुरानी बात है, बहुत पुरानी बात। यूट्यूब में बहुत सारा आप देखते होंगे, मैरिनेट करके छोड़ दीजिए उसको, ठीक है, मसाला वसाला लगा करके एंड ऑल। तो एक्चुअली ना इसमें पेशेंस बहुत है ना, इस काम में पेशेंस बहुत है ना, Yes, sir. ठीक है। एक तो कुकिंग होना है तो 15 मिनट्स का पैरामीटर है, 8 सेंटीमीटर एंड 300 ग्राम, अगेन अ डिसिप्लिन, ठीक है, 60 डेज एंड 70, अगेन अ डिसिप्लिन। और जैसे अगर आज चिकन सर्व होना है, ठीक है, तो उससे उसको एक दिन पहले उसकी तैयारी कीजिए। तो इफ यू आर डूइंग द होमवर्क प्रॉपर्ली, ठीक है, विल बी एबल टू रिप्रेजेंट आवरसेल्फ टुमारो वेरी प्रॉपर्ली। Yes, sir. फाइन। मैरिनेट अब कोई नई बात नहीं है, सभी लोग हम लोग जान चुके हैं, यूट्यूब में बहुत दिखाया जा चुका है। तो ये एक्चुअली इनका फॉर्मूला था, ठीक है, चिकन मस्ट बी रिमेन मैरिनेटेड ओवरनाइट। ठीक है, प्रोसीड। The modern day KFC. KFC now has outlet in more than 120 nations and is in fact the second biggest restaurant chain after McDonald's. Due to the COVID-19 outbreak, many KFC outlets in US and Canada removed its tagline "Finger Licking Good" from its banner, poster, and commercial. KFC's parent company, Yum Brands, also operates Pizza Hut and Taco Bell in India. ओके, वैल्यू एडिशन और किया, पिज्जा है भी, ये सब भी चीज इन्होंने जोड़ा इंडिया में। ओके फाइन, तो कंक्लूजन। Conclusion: the story of Colonel Sanders is an inspiring one in its own right. It shows that one can be of any age in order to run a successful business. It also inspires us to value quality more than money. We hope that you find KFC success story useful and highly motivating. इस लाइन का मतलब डिस्कस कीजिए, ठीक है, एट एनी एज, एनी एज, एज इज जस्ट अ नंबर, ठीक है। तो अब कोई भी चीज जो है ना दिमाग में आपका बायसनेस है, बायसनेस का मतलब है कि पहले ही से हमने ये मान लिया, कोई जरूरी नहीं ना कि वो जो मान्यता हमने किया है जो मन वो सही हो, कि 20 साल की उम्र में बेहतर काम हो सकता है, 30 साल की उम्र में बेहतर काम हो सकता है, और 80 साल की उम्र में कोई काम शुरू नहीं कर सकते हम लोग, आफ्टर रिटायरमेंट कोई काम नहीं शुरू कर सकते हैं। यही है ना कि रिटायरमेंट कर गए उसके बाद फिर यू आर सपोज टू रेस्ट। तो इट्स नॉट लाइक दैट, देयर आर प्लेंटी ऑफ एग्जांपल। अगेन द वेरी गुड एग्जांपल हैपेंस टू बी दिस हैवेल्स ग्रुप, यू नो, कीमत राय गुप्ता जी। After a teaching profession, then then he started, you know, trading in Bhagirathi Palace in this one in Delhi, and then he purchased Havells. तो एज इज जस्ट अ नंबर। तो खैर उसमें ये तो जिस तरह से हमने बोला वो एक नसीहत की तरह है, बट व्हाट इज द इक्वेशन दैट आप लोग भी जॉब करेंगे, और जॉब करने के बाद जब रिटायर करेंगे
जब रिटायर करेंगे उस टाइम फिर एक नया काम शुरू होगा, जस्ट लाइक अ फ्रेशर। क्लियर? Yes, sir. फाइन। वो बड़ा धीरे से यस सर आ रहा है, मतलब तो अभी काम करने का नहीं मन कर रहा है। Yes, sir. देखिए आइडिया जो है ना, इट्स ऑल अबाउट इफ यू डोंट हैव एन आइडिया, अगर आप पास आइडिया नहीं तो आइदर बेग आइडिया, बोरो आइडिया और स्टील आइडिया। तो बेग बोरो स्टील जो है, जो एक अगेन इट हैपेंस टू बी अ स्ट्रेटजी, आप दूसरे से इंस्पिरेशन लीजिए, जिसका इसका सक्सेस फॉर्मूला है उसको शुरू कीजिए, आप उसको कॉपी भी कर सकते हैं, ठीक है, लाइक दैट। चलिए, आई एम स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग जस्ट फॉर द क्लास।